discuss about it. So I will highlight those things which is important, and again some of things which is not included in NCERT. Okay, so and but it is the important in examination point of view. Okay, so that thing we will going to discuss. ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके जाएंगे, बट ऐसी चीजें ज्यादा डिस्कस करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम technical check first of all, and after going to discuss today's topic. Okay, so I am launching poll for technical check. Am I audible clearly to all of you? Okay, and next screen is visible to you. Okay. And up to the end, don't miss the this lecture actually, because a lot of new things about enzyme you want to know. Okay, and that things will clear in this topic, or you can say in this lecture. Okay, so आखिर तक बने रहिए, थोड़ा सा हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, मीन्स थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास. ठीक है, चलिए. So I am ending the poll. I think all clear from the my side. So let's go with some question. And first question is: thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement. Both are due to quantitative defect in globin chain synthesis. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecule. Next is the sickle cell anemia is due to quantitative problem of globin molecule. Next is both are due to qualitative defect in globin chain synthesis. I am launching poll for it, guys. Please answer fast. ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़िए. प्लीज रीड क्वेश्चन प्रॉपरली एंड रीड ऑप्शन प्रॉपरली. करेक्ट सौरभ? चलिए. So I am giving the term about quantitative and qualitative things of sickle cell anemia and thalassemia. ठीक है, in last lecture. Okay, in PPT also that term are we can say highlighted. Okay, so based on that term, this is the question. Correct Sanika? Correct Chamundeshwari? Okay, guys, I am ending this poll. And here maximum people choose an option C. Obviously option C is the incorrect. ठीक है, अब क्यों incorrect है देखते हैं. So first of all, thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in globin molecule synthesis. So this is the correct actually. So you already know sickle cell anemia and thalassemia is the blood related disorder. ठीक है, it is the blood related disorder. ये किससे related है? Blood से related disorder है. Okay, so one basic thing you want to remember about the thalassemia and sickle cell anemia is the qualitative and quantitative defects. Okay, then what is the mean by qualitative defect? ठीक है, qualitative defect. What is mean by qualitative defect? In case of qualitative defect, we discuss about quality of RBC. ठीक है, किसका क्वालिटी डिस्कस करते हैं हम? That is a red blood cell, RBC का quality. Okay, and qualitative disorder is a nothing but the sickle cell anemia. ठीक है, sickle cell anemia. ठीक है. Then what's happen in this sickle cell anemia? So in case of sickle cell anemia, you already know the cell become a shape of sickle. ठीक है, जो सिकल का शेप रहता है उसके बराबर का शेप जो है उसको मिल जाता है.
and that is a qualitative. That means there have no any difference, or we can say no any issue in the quantity of development of RBC. ठीक है, मतलब आरबीसी का डेवलपमेंट का क्वांटिटी में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा, बट द क्वालिटी गेट द क्वालिटी गेट we can say problematic in case of in case of sickle cell anemia. Okay, and next thing want to remember is the quantity. Okay, so in case of thalassemia disease, the quantity of RBC get affected. ठीक है, थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जो क्वांटिटी जो रहता है ना वो अफेक्ट होता है. ठीक है, सो ऑल द रीजन बिहाइंड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी लास्ट सेशन. ओके, सो अब ये दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, देन वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू दिस टू कॉन्सेप्ट इन आवर mind. So both are due to quantitative defect, not both are quantitative defect. ठीक है, दोनों भी quantitative defect यहाँ पर नहीं है, only thalassemia have a quantitative defect. That's why we withdraw this option. इस option को हम छोड़ देते. Next देखते हैं C, that is sickle cell anemia is due to quantitative problem. So it is a not a quantitative, it is a qualitative problem. That's why we also withdraw this option. Next, both are due to qualitative defect, not both are qualitative. In case of thalassemia is the quantitative defect, and that's why we withdraw this statement. Okay, हो गया clear? अब clear कैसे हुआ? There have only two term want to remember, that is quantitative blood disorder and qualitative blood disorder. Okay, so this is the basic thing in this question. Okay, and obviously option B is the correct option. Why B is the correct? Because thalassemia is due to less synthesis. Less synthesis means, again here you can see the word less, it is the quantitative. Okay, it present the quantitative things. Okay, so globin molecule, मतलब यहाँ पर हमारी ये दो टर्म अगर क्लियर है, then we will easily giving the answer of this question. ठीक है, if not clear तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते. चलिए आगे बढ़ते. So this thing we not study in this class actually. अब तक इसको हमने study नहीं किया. So Down syndrome in human is due to 2 Y chromosome, 3 X chromosome, 3 copies of chromosome on 21 chromosome actually. Next is monosome. ठीक है. So I am launching poll again, guys. Please answer it. Actually, this is a easy and direct question. करेक्ट सौरभ, करेक्ट अहिल्या, करेक्ट अतुल, करेक्ट सोनाली, करेक्ट अभय, करेक्ट वैभव, करेक्ट धूम, करेक्ट निकुंज, करेक्ट आंचल, करेक्ट दीपशिका. ये सभी का करेक्ट आने वाला है. करेक्ट कृपा. एक्चुअली दिस इज नॉट हेवी क्वेश्चन, एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका. ठीक है, चलिए आई एम एंडिंग दिस पोल बिकॉज एवरीवन हैव करेक्ट इन इट, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज योर रिजल्ट. अगेन यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है इनकरेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट किया है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिए खुद को. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. कैसे करेक्ट है वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. ठीक है, दैट इज 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 in case of Down syndrome. ठीक है, so coming to the next guys, next is the genetic disorder and we will going to discuss about chromosomal disorder. Then what is meant by chromosomal disorder? Up to the last lecture we discussed about a disorder happen due to, we can say म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन के वजह से कुछ डिसीज होते थे. तो ठीक है, बट इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नॉट ओनली म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑर्डर, but also during the meiosis happen at that time some segregation of chromosome was not done properly. Okay, and due to that issue and due to that problem क्या होता है, there have some disease develop. Okay, मतलब
क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं होगा और उसके वजह से क्या होगा, डिसीज का डेवलपमेंट होगा, एंड दैट थिंग इज नोन एज दी वी कैन से एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। एंड दिस डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू अपस्ट्रीम एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, मतलब एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। And there have two main part, that is aneuploidy and polyploidy. Then what is meant by aneuploidy, guys? So you can see when it is the gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatid during cell division. Cell division के वक्त अगर कुछ issue हो जाता है to segregation in chromatid, so it is known as the aneuploidy. इसे हम क्या कहेंगे, aneuploidy. You can see in this picture clearly. Okay, this is the meiosis 1 happen. And after meiosis 1, here meiosis 2 gets started, and during meiosis 2, segregation not happen properly. So you can see there have 3 chromosomes, okay, and here only 1 chromosome. But in case of normal functioning के लिए क्या चाहिए, only 2 chromosome यहाँ इस जगह पे हमें चाहिए थे. Okay, so this is the loss, okay, or gain of chromosome. ठीक है, यहाँ पर loss होगा या gain of chromosome होगा. So you can see in the normal body we have a diploid chromosomal structure. हमारा diploid chromosomal structure रहता है. But in case of aneuploidy, what's happened? So there have different 6 part here. You can see that is nullizomic. In case of nullizomic, what happened? There have absence of complete pair of chromosome. मतलब यहाँ पर chromosome का pair ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर pair ही नहीं है. Okay. Next is a monozomic. You can see here, this is the normal, compare with the normal with this chart, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए. So in case of monozomic, so here we want to pair of chromosome, but only 1 chromosome is present here. Okay, so this is known as a monozomic. That means 2n minus 1. 2n minus 2 का मतलब होता है there have nullizomic, there have no any type of chromosome present or no any pair. Okay, next is doubly monozomic. So what's happening in doubly monozomic? There have only 1 chromosome from 1 pair, and again next pair have only 1 chromosome, but pair के अंदर दूसरा chromosome नहीं, ठीक है. That means the monozomic condition happen 2 times. That is why it is known as a doubly monozomic, ठीक है. That is 2n minus 1 minus 1. Okay, next is a trisomic. So what happened in trisomic? You can see we want only pair of chromosome here, but again 1 chromosome attaches in the pair. मतलब एक chromosome attach हो गया pair के अंदर, ठीक है. That is 2n plus 1 condition. Next is tetrasomic. Tetrasomic में 4 chromosome आ जाएगा, ठीक है. मतलब यहाँ पे एक ही pair का जरूरत था, but there have 2 pair. Again यहाँ पर जो है pair बढ़ गया है, ठीक है. So this is a different type of aneuploidy, and it causes a specific type of disease in a human, ठीक है. So you can see again nullizomy, monozomy, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, ठीक है. यहाँ पर ठीक है, हम डिसीज पे जाते हैं डायरेक्ट. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी. सो व्हाट्स हैपन इन पॉलीप्लॉइडी, ठीक है. सो इट इंक्रीज द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीमेंट होना, एंड इट हैपन ड्यू टू साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के वक्त. सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द हैप्लॉइड जीन, ठीक है. अब ये डिप्लॉइड रहेगा तो ये इस तरीके से, दैट थिंग इज द नॉर्मल. ये चीजें क्या है, नॉर्मल चीजें. Okay, but if it have a triploid, it have a tetraploid, it is the abnormal condition. ये कैसा condition रहेगा, abnormal, and it is known as the polyploid. इसे हम क्या कहते हैं, polyploid, ठीक है. Coming to the next is the Down syndrome. So what reason behind Down syndrome? So you already know there have a chromosome, and chromosome number 21, and 21 number chromosome contain a 3. Okay, normally it want to contain 2 chromosome, मतलब 2 chromosome चाहिए, और we can say 1 pair of chromosome चाहिए, but you can see in this picture it have a 3 chromosome. यहाँ पर 3 chromosome हमें देखने को मिलते हैं, and we can say the genetic constituent here. So 45 autosomes. Okay, ये कितना होना चाहिए, 44. It want to 44, but it have a 45, ठीक है, due to trisomy, ठीक है. ट्रायोसोमी के कारण यहाँ पर 45 ऑटोसोम, एंड नेक्स्ट इज द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस डिसीज?
So you can see the short status with a small round head. ठीक है, मतलब बच्चा जो रहता है वो ऐसा राउंड हेडेड जो रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो कद रहेगा, द हाइट ऑफ पर्सन हैव अ शॉर्ट। नेक्स्ट इज अ फ्लैट फेस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। So this is the flat faces personality. Next is a big tongue, and the tongue contain the furrow. ठीक है, furrow in the sense this line like system, ये ऐसा लाइन जैसा दिख रहा है ना, that is a division. Okay, मतलब ऐसा लग रहा है कि the tongue get divided. Okay, like that. So this is known as furrow. ठीक है, उसे कहा जाता है furrow. अपना टंग नहीं है, अपना टंग वैसा नहीं है, ठीक है, हम हमारा टंग क्लियर है, ठीक है। Next is a broad palm with a simian crease. Simian crease means, guys, you can see in this palm. So there have a line, and this line is the direct start from one end and end with a one end. ठीक है, बट नॉर्मल जो पर्सन रहेंगे उनका जो ये लाइन रहता है बीच वाला, यू कैन सी दिस लाइन, ठीक है। सो दिस लाइन गेट वी कैन से ब्रेक, और दिस लाइन गेट सेपरेट। ओके, ये सेपरेट होगा, ब्रेक होगा, बट इन द डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होगा, दैट इज अ सिमियन क्रेज। ठीक है, सिमियन क्रेज का मतलब होता है देयर हैव डायरेक्ट लाइन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड एंड विद दिस साइड, ठीक है, लाइक दैट, ये इस तरीके से, ठीक है। बट इट इज अगेन यहाँ पर ब्रेक हुआ है दिस लाइन, दिस इज नॉट अ सिमियन क्रेज, ठीक है। सो ये इस तरीके का हमें हैंड के अंदर जो है सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, इट इज अ एन्यूप्लॉइडी अब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स। ओके, यू कैन सी द लूप्स ऑन द फिंगर टिप। ओके, एंड पर्सन हैव अ फिजिकली mentally retarded. Okay, there have no proper mental development and some psychomotor illness in the person. Then what is meant by psychomotor illness? For example, one person have a, we can say, late, okay, जो late in the sense late in every activity, ठीक है, मतलब उसको समझने में कम आता है, कुछ काम करने को बोला जाए तो वो लेट धीरे धीरे करेगा, लाइक दैट इज अ साइकोमोटर, ठीक है। मतलब उसका जो ब्रेन रहेगा ना, दैट ब्रेन कैपेसिटी इज नॉट प्रॉपर टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब उसके ब्रेन का कैपेसिटी जो है वो अच्छी तरीके से समझने लायक नहीं रहेगा। इसको हम है ना मेंटली चैलेंज जो है बोलते हैं। ये हमारे अराउंड दिखते भी है लोग ऐसे हु हैव अ डाउन सिंड्रोम, जिनको डाउन सिंड्रोम रहेगा, ठीक है। मतलब उनका एज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बट क्या होता है जो उनकी आदतें है, इट लुक लाइक बेबी और वी कैन से स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं दे हैव अ मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम, उनके अंदर क्या रहेगा, डाउन सिंड्रोम, उनमें हार्ट डिसीज की भी संभावना यहाँ पर बनती है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, यू कैन सी द ऑल दिस पिक्चर अगेन, यहाँ पर आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाएंगे। Next thing is the Klinefelter syndrome. Okay, so what's happening in Klinefelter? So first of all, want to know, एक चीज ध्यान में रखना, अभय अब पूछा ही है तो पॉलीप्लॉइडी मैक्सिममली हैपन इन द प्लांट केस, मतलब प्लांट केस में पॉलीप्लॉइडी ज्यादा रहता है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर हैव एन्यूप्लॉइडी, मतलब जितना भी डिसीज आपको दिखेगा ना ये एन्यूप्लॉइडी, देयर हैव ओनली वन चेंज, दैट इज अ क्रोमोसोम। यहाँ पर एक ही चेंज हमें देखने को मिलता है, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर जो है ना स्पेसिफिक सिस्टम में वो चेंज हो जाएगा। लाइक इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम वी कैन सी द 21 क्रोमोसोम जो रहेगा, 21 नंबर का जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ओके, सो दैट हैव अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ओके। So likewise in case of Klinefelter syndrome we can see there have extra X chromosome, ठीक है, मतलब हमारा ये मेल को डिटरमाइन करेगा, दैट इज XY क्रोमोसोम, बट इट कंटेन अगेन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, इसके पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, एंड दैट्स व्हाई दिस disease happen, that is known as Klinefelter syndrome. Okay, then what's happen in Klinefelter syndrome, guys? So you can see there have masculine development जो है वो होता ही है, okay. Why masculine development happen? Because Y gene, or we can say this Y chromosome, not a Y gene,
Y chromosome release the testosterone and testosterone is a responsible for the development of muscles. ठीक है, ये मसल्स के डेवलपमेंट के लिए काम में आता है. बट वी कैन सी हियर एक्स्ट्रा एक्स आल्सो. ओके, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा एक्स का जो एस्ट्रोजन वाला सिस्टम है, ठीक है, इट गेट इवोक इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द मेल बॉडी, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल. ओके, इन क्लेनफिल्टर सिंड्रोम. मतलब क्लेनफिल्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, सैनिड्यूल. ठीक है, क्लेनफिल्टर, बिकॉज ये क्या है, इसका बॉडी क्या रहेगा, लाइक अ मेल. ठीक है, बॉडी क्या रहेगा, मेल का बॉडी रहेगा, बट दे कंटेन सम ऑफ सिम्पटम और सम ऑफ कैरेक्टर ऑफ फीमेल. ठीक है, बट उनके अंदर फीमेल का कुछ कैरेक्टर रहेगा. बट अगर हम उनके सेक्स की बात करें, सो दे हैव अ मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, उनके पास मेल सेक्स ऑर्गन रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. इसी वजह से हम एक्स्ट्रा एक्स कह रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, so they develop some of feminine character in the sense breast development, okay, voice modulation वगैरह. ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं. it have a sterile person, okay, वो कैसा रहेगा, स्टराइल रहेगा. नेक्स्ट, इट दे हैव अ मेंटली रिटार्डेड, मतलब दिमाग जो है उनका काम नहीं करता. so what's happen here, you can see in the sex chromosome extra x is a link. ठीक है, चलिए. Next is the Turner syndrome. So what's happened in Turner? In case of Turner, you already know the XX chromosome decides the female sex organ. Okay, ठीक है, ये फीमेल सेक्स को जो है वो डिसाइड करता है. बट what happen when only X chromosome is a कम. ओके, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम अगर फीमेल के बॉडी में है तो तब क्या होगा. सो देयर हैव अ टर्नर सिंड्रोम. वहां पर कौन सा सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम. ओके, देन व्हाट इज द सिम्पटम. हाँ, यस यस आचर, करेक्ट. ठीक है, what is the Turner syndrome actually? So in case of Turner syndrome, only X chromosome present in female body, and that's why the representation of a complete female character is not done. मतलब female character जो रहता है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बॉडी में वो नहीं होता है, due to only one X chromosome, because only one X chromosome is not sufficient to develop we can say complete hormone inside a female body. मतलब फीमेल के अंदर पूरा जो है वो सिस्टम, जो फीमेल का सिस्टम रहता है वो डेवलप करने में ये एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल या नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा. इन द सेंस वो पूरा का पूरा सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकता. जैसे यू कैन सी देयर हैव शॉर्ट बॉडी टाइप, इनका बॉडी टाइप रहेगा शॉर्ट. ओके, यू कैन सी वेब्ड नेक, दैट मींस दिस वी कैन से दिस स्कल, ये इस तरीके से ऐसा फंसा हुआ रहेगा, ऐसे हमारा ऐसा है. ओके, दैट इज देयर हैव सम डिस्टेंस बट इट हैव गेट डाउन, ये यहाँ पर डाउन होगा. ओके, देयर हैव शील्ड चेस्ट, उसके बाद अनडेवलप्ड ब्रेस्ट रहेगा. ओके, एंड ओवरीज आर देयर बट नॉन फंक्शनल ओवरीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रूडिमेंटरी ओवरीज. रूडिमेंटरी ओवरीज का मतलब होता है जो ओवरी काम नहीं करती है. ओके, एंड देयर हैव सम ब्राउन स्पॉट ऑन द बॉडी. ओके, मतलब बॉडी के ऊपर कुछ ब्राउन स्पॉट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पर्सन हैव स्टेराइल, दैट मींस दे नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट दे हैव सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो पूरे नहीं रहते. ओके, देयर हैव नो कंप्लीट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनमें. दे हैव अ डॉर्फ. ओके, दे हैव अ मेंटली रिटार्ड. यू कैन सी अगेन यहाँ पर पूरा कैरेक्टर जो है हमने लिखवा के दिया है. ठीक है, ओके, चलिए. ओके गाइस, सो दिस टाइप ऑफ पर्संस अगेन हमारे सोसाइटी में जो है वो देखने को मिलते हैं. ओके, एंड व्हिच कंक्लूडेड इन द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी. ठीक है, इनको हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में दैट इज टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम वाले पर्संस को जो है कंक्लूड करते हैं. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज प्लीज read it wisely, okay, and after give the answer. First of all, if you want to pen and paper to solve this question, please give it. Okay, please take it, sorry. So what is the question? A normal vision man, though the father was a color blind. ठीक है, मतलब एक नॉर्मल
विजन वाला इंसान है, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मैरिड टू वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, मतलब एक लड़की से शादी किया और वो लड़की के भी फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे. So they have their first child as a daughter. What are the chance that the child would be color blind? ठीक है, तो क्या चांसेस है डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के? करेक्ट दून, चामुंडेश्वरी करेक्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए, आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर इट, प्लीज आंसर. निकुंज इनकरेक्ट, वैभव इनकरेक्ट. ओके, अहिल्या करेक्ट, बाकी शुभम करेक्ट, जानवी करेक्ट, दीपशिका इनकरेक्ट, पूनम इनकरेक्ट, आंचल करेक्ट, अतुल इनकरेक्ट, अहिल्या करेक्ट, बीटिका करेक्ट, वैभव इनकरेक्ट, अमूल्य करेक्ट, कृपा इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए, आई एम एंडिंग दिस पोल and this is your result. Maximum people choose an option B. Obviously B is the correct option. ठीक है, यहाँ पर जीरो चांस रहेगा. ठीक है, so जीरो चांस क्यों रहेगा? So first of all we want to know color blindness is the disease which is the X-linked recessive. ठीक है, ये कैसा डिसीज है? X-linked recessive. ठीक है, ओके, हो गया क्लियर एक चीज. देन वी वांट टू नो, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है हमारा, नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. ठीक है, मतलब नॉर्मल विजन वाला एक ह्यूमन है, उसके फादर जो है ना वो कलर ब्लाइंड है. ठीक है, मतलब हम फादर के बारे में पहले देखेंगे. ठीक है, सो फादर के बारे में जब देखते हैं तो फादर का जेनेटिक पैटर्न इस तरीके से होगा, एक्स वाई. ओके, सो ये मेल के केस में है. ओके, ठीक है, सो हियर वी ऑलरेडी नो देयर हैव अ एक्स लिंक रिसेसिव, दैट्स व्हाई डिसीज वाला जीन रहेगा एक्स पे इन केस ऑफ फादर. ठीक है, ये फादर वाला केस देख रहे हैं हम, मेल का फादर. ठीक है, नेक्स्ट इन केस ऑफ फीमेल फादर के केस में अगर हम देखेंगे, सो ठीक है, इनका सिस्टम ऐसा रहेगा. ओके, एंड फीमेल फादर हैव अ डिसीज जीन, ओके, ऑन द एक्स. ओके, अब यहाँ पर मेल जो है, ठीक है, उसका जन्म होता है फ्रॉम द फादर. ठीक है, फ्रॉम द फादर इन द सेंस एंसेस्टर, इनका जो फादर है वो डिसीज रहेगा, तो मेल यहाँ पर जो है उसका पैटर्न कैसा रहेगा यहाँ पर. सो यू कैन सी इन केस ऑफ मेल का जब जन्म होगा तब यहाँ पर ओनली वाई क्रोमोसोम ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फादर, दैट्स व्हाई देयर हैव नो एनी डिसीज एक्स. ओके, मतलब यहाँ पर एक्स के ऊपर कोई भी जो है वो डिसीज कैरेक्टर नहीं रहेगा. ठीक है, तो मैं ऐसा नॉर्मल सा इसका मेल के लिए क्रोमोसोम बनवा देता हूँ, दैट इज एक्स एंड वाई. व्हाई एक्स एंड वाई ओनली? बिकॉज वाई हैव नो एनी डिसीज क्रोमोसोम. ठीक है, इसके ऊपर कोई भी डिसीज जीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ऑन द वाई क्रोमोसोम. ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ फीमेल व्हाट्स हैपन, अब ये फीमेल है तो फीमेल हैव टू चांसेस. ठीक है, अब फीमेल के पास में है ना यहाँ पर एक चांस ऐसा है. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम फादर की बात करें तो यहाँ पर दो चांसेस हमें देखने को मिलते हैं. इन केस ऑफ फीमेल कैसा डेवलप होगा, वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर ऑफ फीमेल के मदर से आया, दैट इज अ हेल्दी क्रोमोसोम. एंड नेक्स्ट क्रोमोसोम हैव अ डिसीज क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फादर. ठीक है, मतलब ये किससे आया, फादर के ओर से आया जो डिसीज क्रोमोसोम है. ठीक है,
और सन की बात करेंगे इसके, तो सन में भी वाई आएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई, मतलब यहाँ पे सन जो है वैसे के वैसे रहेगा। अब क्या होता है, दे मैरी, मतलब ये दोनों ने क्या किया, शादी कर लिया, ओके। एंड यू ऑलरेडी नो इन दिस केस फीमेल हैव अ डिसीज जीन ऑन देयर एक्स क्रोमोसोम, बट दिस इज द रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, दैट्स व्हाई दिस फीमेल हैव अ कैरियर ओनली, मतलब ये फीमेल क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियर ही रहेगा, ठीक है। देन इनका जो है रिप्रोडक्शन, सॉरी, इनका शादी हो गया, ओके। सो आफ्टर मेटिंग इट हैव अ न्यू पैटर्न डेवलप, अब एक यहाँ पर नया पैटर्न डेवलप होता है, दैट इज एक्स एक्स अगेन, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई, बट दिस एक्स हैव अ डिसीज जीन, सो मैं यहाँ पर डी लिखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया ना, 1 मिनट, ये एक पैटर्न डेवलप होगा यहाँ पे, एक्स एक्स अगेन दे हैव अ डिसीज जीन, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे डिसीज जीन आ गया, ठीक है, और एक ये पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है, दैट इज अ एक्स वाई, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, सो दिस इज द हेल्दी फीमेल, वन इज द हेल्दी फीमेल, ठीक है, ये कंप्लीटली हेल्दी रहेंगे, ठीक है। देयर हैव डिसीज सन, ठीक है, ये डिसीज सन रहेगा, एंड देयर हैव कैरियर फीमेल एंड हेल्दी सन, ठीक है, मतलब इतना पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ठीक है। सो वाई जीरो, अब यहाँ पे कंक्लूजन हमने निकाला है जीरो, या बहुत सारे लोगों ने जीरो को आंसर किया है, तो जीरो क्यों, बिकॉज हियर यू कैन सी डिसीज इज द एक्स लिंक रिसेसिव, एंड दैट्स व्हाई इट द बेबी जो गर्ल चाइल्ड रहेगा, शी हैव अ करियर ओनली, ठीक है, यहाँ पर ये क्या रहेंगी, कैरियर रहेंगी डिसीज की, देयर हैव नो एनी फिनोटिपिक कैरेक्टर शो बाय द फीमेल, मतलब यहाँ पे फीमेल कोई भी फिनोटिपिक कैरेक्टर यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। सो क्लियर है ये चीज, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एक्स लिंक, दिस इज कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव, ओके, एंड दैट्स व्हाई फीमेल डू नॉट शो एनी डिसीज, ठीक है। हाँ, शी वॉज अ करियर, वो जो है वो करियर रहेंगी यहाँ पर, बट वो कोई भी डिसीज को शो नहीं करती, ठीक है। हाँ, लास्ट स्टेप में क्या है निकुंज, सिंपल सा चीज है, अब हमने सबसे पहले फादर का जो है वो जीनोमिक पैटर्न जो रहेगा सेक्स क्रोमोसोम वाला, वो हमने निकाला, ठीक है, दैट इज एक्स डिसीज वाई, सिंपल रहेगा। इन केस ऑफ फीमेल वाला फादर, वो भी एक्स डिसीज रहेगा, वाई सिंपल रहेगा। अब ये फादर जब बच्चा पैदा करता है, तो मेल चाइल्ड जब होगा तो वो कौन सा क्रोमोसोम देगा, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम देगा, दैट्स व्हाई वाई क्रोमोसोम तो हेल्दी है, तो मेल का तो कोई इश्यू नहीं, मेल के अंदर डिसीज आएगा ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट फीमेल के केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर देगा। अब एक्स क्रोमोसोम जब ये फादर देता है, तो एक्स क्रोमोसोम हैव अ डिसीज क्रोमोसोम, मतलब इसके ऊपर क्या है, डिसीज है अल्टीमेटली, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, मेल और फीमेल का मेटिंग किया ये जनरेशन के अंदर, तो हमें ये पैटर्न मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल जो रहता है ना, वो कैरियर रहता है, वाई कैरियर, बिकॉज डिसीज इज द एक्स लिंक रिसेसिव, डिसीज क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। सेक्स लिंक इन द सेंस एक्स लिंक और वाई लिंक दोनों भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सेक्स सेक्स क्रोमोसोम जो रहता है ना, वो कौन सा है, एक्स एंड वाई, ठीक है, आइदर इट लिंक टू एक्स और लिंक टू वाई, मतलब कुछ डिसीज है वो वाई लिंक ऑल्सो, मतलब कुछ डिसीज जो है वो वाई लिंक भी रहते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। So coming to the next guys, next thing is the metabolism. Then what is the metabolism? It is the biochemical reaction, and this biochemical reaction is the we can say something construct, okay, and something destruct in case of metabolic process, okay. So there have a lot of biochemical reaction happen inside our body, and due to that biochemical reaction our body is the living, मतलब हमारा body जो रहता है वो living रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So metabolism have a two part.
Okay, so how we decide? 1 second, Abhay saying something. So why we decide which disease is X-linked or Y-linked? So हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई डिसीज X-linked है या Y-linked है? So Y-linked disease happen only in the male. ठीक है, Y-linked disease जो है वो मेल में ही होगा, इनहेरिटेंस के अंदर. ओके, एंड X-linked जो डिसीज रहेगा, इट प्रेजेंट इन फीमेल ऑल्सो and male also. उसमें भी if X-linked dominant disease, then it we can say properly present in the female as well as a male. मतलब वो male female दोनों में भी present रहेगा, ठीक है. But if it recessive, then female is the carrier. उस केस में female क्या रहेगा? Carrier रहेगा and male have a disease. ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ, मैं सैनिटल बाद में बता दूंगा वायलिंग का लास्ट में. ठीक है, पहले मेटाबॉलिज्म को ले लेते हैं, मैं ध्यान में रखता हूँ ये चीज. समझ में आ गया? तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं वो जो रहेंगी एक्स लिंक और वाई लिंक डिसीज के बारे में है. ठीक है, नेक्स्ट इज द सो हाँ ओके, सो मेटाबॉलिज्म हैव टू पार्ट, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ठीक है, देन व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म? सो इट हैव अ destructive process, that means something break, and that's why something break in the sense bond break, and that's why energy get released in case of catabolic pathway. Catabolic pathway में क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज होता है. एंड एग्जांपल फॉर कैटाबोलिक इज द ग्लूकोज. ओके, and the glucose making lactic acid due to glycolysis process or respiration. ये हो गया catabolic pathway. In case of anabolic, something get construct and here it consume energy. वो क्या करेगा? एनर्जी को कंज्यूम करेगा. Okay, that means simple molecule develop into the complex structure, and in case of catabolic, complex molecule become a simple structure. मतलब इसमें डिस्ट्रक्ट होगा तो इसमें कंस्ट्रक्ट होगा. डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कंज्यूम ऑफ एनर्जी, एंड देयर हैव सम एग्जांपल. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट. ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म is the process where lot of chemical reaction happen, some products are developed, and that product is known as the metabolite. उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट. ठीक है, अब इसका जो पाथवे रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, इट लुक लाइक अ ट्रॉफिक. ओके, ये ट्रॉफिक जैसा काम करता है, एंड दैट्स व्हाई इट मेंटेन द स्टेट ऑफ बॉडी, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, मतलब हमारे बॉडी का जो लिविंग स्टेज है इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है. Then next is the primary metabolite. Then what is the mean by primary metabolite? Primary metabolite का मतलब क्या होता है? So guys, primary metabolite generally synthesized by the plant. Primary metabolite को synthesize करेगा प्लांट जो है वो synthesize करेगा जनरली. ठीक है, it is the simple molecule. ठीक है, ये कैसे रहेंगे? simple molecule रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट इज द लार्ज. प्रोडक्शन कैसा रहेगा इसका? लार्ज रहेगा. ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर फॉर बेसिक एक्टिविटी. ठीक है, बेसिक एक्टिविटी के लिए ये क्या रहेंगे? रिक्वायर रहेंगे. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. Okay, so secondary metabolite are the derivative of primary metabolites. ठीक है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डेरिवेटिव है. ओके, कौन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ओके, it have a accessory function. That means if secondary metabolite is not present, okay, then plant not we can say plant जो है वो मर नहीं जाएगा. ठीक है, plant not die. Okay, but it is important for their protection. ठीक है, और any organism मर नहीं जाएगा if secondary metabolite उसके अंदर present नहीं रहेंगे. Okay, so that's why I'm right here. It have a accessory function. उनके function कैसे रहेंगे? Accessory रहेंगे. It produced by the fungi, microbes means microorganism and the plant. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं. इन केस ऑफ प्लांट इट गेट स्टोर. ठीक है, प्लांट के अंदर ये क्या हो सकते हैं? स्टोर भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज द टाइप? जैसे पिगमेंट हो गया, अल्कोइड्स, टर्पेनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन
lectins, drugs, polymeric substances, all those are the secondary metabolites. ये सारा चीज जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ body get if body going on the equilibrium position, at that time our body functions get stopped। मतलब हमारा बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर चला गया तो क्या होगा, बॉडी का फंक्शन क्या है यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कुछ भी रिएक्शन के लिए रहे नहीं, वो रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, या प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, so every time our body want to minus plus situation, हमारे बॉडी में माइनस प्लस सिचुएशन होना चाहिए, either some condition is the minus तो some condition are the plus, so it develop non equilibrium condition। ठीक है, मतलब कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो माइनस होना चाहिए तो कुछ प्लस होना चाहिए, इस तरीके से बॉडी में चलना चाहिए। एट दैट टाइम आवर बॉडी इज लिव इन अ लिविंग स्टेट। ठीक है, हमारी बॉडी कैसी रहेंगी, लिविंग स्टेट में रहेंगी। Coming to the next is the enzyme। Enzyme is the main part of today's session, so you already know there have a rate of reaction। Okay, so what is the important two factor for rate of reaction, you can see on your screen। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है, that is a product, okay, and specific product develop in the specific time। ठीक है, मतलब एक कुछ प्रोडक्ट है वो अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर डेवलप होता है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज्यादा है या कम, समझ में आ गया। अब एंजाइम क्या है गाइस, सो एंजाइम इज द बायोकैटालिस्ट। ओके, एंजाइम क्या है, बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, सो बायोकैटालिस्ट नथिंग बट it is the catalytic activity, it show the catalytic activity in the living system। जो क्या करता है, catalytic activity को शो करेगा कहां पर, लिविंग सिस्टम के अंदर। then what is mean by catalytic activity, so catalyst is the substance which take part in the reaction but not प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा बट प्रोडक्ट में हमें नहीं दिखता, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द रिएक्शन। वो क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ओके चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों को और कुछ स्टेटमेंट देखेंगे। एंजाइम ऑफर कोलाइडल स्टेट एंड ऑफन प्रोड्यूस इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म इट इज नोन एज दी प्रोएंजाइम और zymogens। ठीक है, उसको zymogen या प्रोएंजाइम हम कहते हैं। ठीक है, सो एंजाइम आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स। ओके, प्लीज रिमेंबर एंजाइम आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सम एंजाइम हैव अ we can say RNA, okay, that is a ribosome, ribozymes, okay, that is known as the ribozyme। That means you already know RNA have a ability to act like a enzyme, okay, in the RNA world। जो RNA world का जो सिस्टम है उसमें RNA ही एंजाइम का काम यहाँ पर करता है। That's why this is a famous statement that is all proteins not a enzyme, okay। all protein जो है all protein have a enzyme, okay, but all enzyme not a protein। मतलब सारा का सारा एंजाइम प्रोटीन यहाँ पर नहीं। ठीक है, सो एंजाइम जनरली किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डायग्राम। डायग्राम में हमें अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। सो व्हाट इज मीन बाय कोफैक्टर, सो कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन आयोनिक मेटालिक आयन। ठीक है, इट इज द नॉन प्रोटीन metallic ion। then what is the function of cofactor, cofactor enhance the activity of enzyme, जो enzyme का activity को बढ़ाएगा। this is the catalytic side। then what is mean by catalytic side, you can see the catalytic side here, okay, so this catalytic side is the substrate binding side। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, substrate bind होता है। next is the coenzyme। then what is mean by coenzyme, coenzyme is the organic, okay, it is the organic, okay, and it also enhance the ability of enzyme। ये भी क्या करेगा, एंजाइम का एक्टिविटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज द अपोएंजाइम। अपोएंजाइम इज द मेन प्रोटीन एंजाइम पार्ट। ठीक है, अपोएंजाइम क्या रहेगा, मेन जो एंजाइम रहता है, ठीक है, एंजाइमेटिक पार्ट रहता है जो प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, दैट इज नोन एज अपोएंजाइम। होलो एंजाइम इज नोन एज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम।
ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू दी शोरूम, ठीक है, किसी शोरूम में चले गए, फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू दी बाइक शोरूम, ओके, एंड यू परचेस द बाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक हैव नो एनी अदर एसेसरीज, ठीक है। सो बाइक को जब हम परचेस करते हैं एट दैट टाइम देयर हैव नो एनी एसेसरीज, मतलब उसको कुछ एसेसरीज नहीं रहती। एसेसरीज इन द सेंस सीट कवर, फॉर एग्जांपल मिरर्स, ओके, फॉर एग्जांपल अदर पेंटिंग्स एंड अदर थिंग्स जो भी हम आर्ट बाइक पे निकालते, सो देयर हैव सम एसेसरीज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एसेसरीज फर्स्ट ऑफ ऑल इन शोरूम बाइक के अंदर नहीं रहता है। सो वी वांट टू ऐड एसेसरीज, एंड आफ्टर एडिंग द एसेसरी, आफ्टर फिलिंग the complete fuel tank, okay, at that time this bike get active, or we can say चलने के लिए, या go for the ready for the वी कैन से हम ड्राइविंग उसका कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से वी नो एंजाइम हैव अ प्रोटीन पार्ट, ओके, एंड हमने यहाँ पर बोला ही भी है एंजाइम आर दी प्रोटीन, बट दिस प्रोटीन इज नॉट एक्टिव, ओके, if this part that is cofactor coenzyme, ठीक है, these things are not joined to the enzyme, मतलब ये चीजें अगर यहाँ पर ज्वाइन नहीं होती तो ये जो है ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। एंड दैट्स व्हाई this holoenzyme is a complete active enzyme, okay, which contain coenzyme and cofactor and other things, ठीक है। मतलब इसके पास में ऐसी चीजें रहेंगी जो क्या कर सके, एंजाइम को एक्टिव रख सके या रिएक्शन में वो टेक पार्ट यहाँ पे कर सके, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमें और चीजें देखने को मिल रही है, जैसे एक सिंपल सा मैं सिस्टम आपने देखा होगा, जैसे क्या क्या देखा होगा आपने, एक चीज देखा होगा, जैसे एंजाइम रहता है, ठीक है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है ES कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमें क्या देता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन, यू ऑलरेडी नो, ये रिएक्शन हमें पता ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन डायग्रामेटिक फॉर्म हम इजीली इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द वन ऑफ वी कैन से एंजाइम, ठीक है, ये जो है ना ये एक एंजाइम है, ठीक है, इस तरीके से, प्लस यहाँ पर ये इस तरीके से दो सबस्ट्रेट है। सो वी वांट टू रिएक्शन इन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट, एंड दिस रिएक्शन हैपन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। रिएक्शन किसके मदद से होगा, एंजाइम के मदद से। सो यू कैन सी हियर देयर हैव अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गेट डेवलप। अब यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, ये वाला, हो गया, दैट इज नोन एज द ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द एंजाइम, ओके, एंड इट गिव द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन एंजाइम को हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसा हो गया, समझ लेना क्या है। दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर इस तरीके से बन गया है प्रोडक्ट, ओके, लाइक दैट, ओके, that is square and triangle is the product and this is the enzyme. So this is the simple reaction, simple representation of enzyme and substrate complex and enzyme and product. So how we nomenclature the enzyme, so we nomenclature enzyme on their functions. Function कैसे, जैसे class of enzyme is the oxidoreductase, so this oxidoreductase is responsible for the oxidation, okay, and reduction, या कुछ कोई रिडक्शन ही करेगा और कुछ ऑक्सीडेशन ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे या रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, और बोथ थिंग्स आर परफॉर्म, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, वो परफॉर्म करेंगे। सो यू कैन सी इट परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज NAD+, दैट इज an example in dehydrogenase H2O2 in peroxidase, ठीक है। So this is the sum of example want to remember. Next is a transferase. Transferase means something transfer from one place to another, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। You can see it catalyzed by transferring group like amino, phosphoryl, carboxyl, carbonyl, ये सारा ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ से, इसके एग्जांपल है काइनेजेस, ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, ट्रांस अमीनेजेस, फॉस्फोराइलेज, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या करता है,
H2O को ऐड करने का काम करता है। इट परफॉर्म अ रिएक्शन बाय एडिंग अ वाटर, ठीक है, मतलब पानी को डालने का काम करेगा, ठीक है। एंड विच ब्रेक द बॉन्ड लाइक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रोकन बाय द फॉस्फोडाइस्टरेजेस, अमाइड बॉन्ड ब्रोकन ऑन बाय पेप्टिडाइडेस, ठीक है। तो ऐसे उसके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। लाइसिस क्या करेंगे, लाइसिस क्या करेंगे, रिमूवल करेगा, ठीक है, मतलब ये रिमूव करने के काम में आता है, ठीक है। सो ग्रुप लाइक CO2 NH3 आर आइदर एडेड रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट, जैसे अल्डोजेस सिंथेसिस, ठीक है, ऐसे इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज क्या करेगा, आइसोमेरिक फॉर्म को जो है वो डेवलप करेगा, जैसे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे इपिमरेज, म्यूटेजेस, ठीक है, ये आइसोमर के फॉर्म को डेवलप करता है। जैसे ग्लूकोज का फ्रुक्टोज बनाना हो, दैट इज अ आइसोमर, वो क्या रहेगा, आइसोमर का फॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट इज अ लाइगेज, लाइगेज इज अ एक्ट लाइक अ ग्लू, ये क्या करेगा, ग्लू जैसा जो है वो एक्ट होता है, ठीक है। ग्लू जैसा एक्ट होता है मतलब ग्लू क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, लाइगेज भी दो चीजों को जोड़ने का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस, हो गया क्लियर ये, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, स्पीड अगर ज्यादा हो रहा है तो कुछ इसमें ऐसा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं, जहां पर दिमाग लगाने वाला चीज है वहां पर स्पीड में कम कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये तो पता ही है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें, इसके वजह से हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हमें कंप्लीट करना है एंजाइम का आज। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। देन व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सीधा सीधा ग्राफ पे जाते हैं। तो विदाउट एंजाइम जो है हमें एनर्जी इन रिएक्शन इज अ हाई, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर विदाउट एंजाइम की बात करें तो हमें इतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। यू कैन सी द एनर्जी कॉलम हियर एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक रिएक्शन को करने के लिए हमें इतना सारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई एंजाइम इज इम्पोर्टेंट टू सेव एनर्जी। मतलब एंजाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए एज वेल एज रिएक्शन में से एनर्जी को बचाने के लिए, ठीक है। सो विदाउट एंजाइम वी हैव अ लॉट ऑफ वी वांट अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर एंजाइम नहीं है तो इतना सारा एनर्जी लगेगा। इफ वी ऐड द एंजाइम, ओके, एट दैट टाइम यू वांट ओनली अप टू दिस मार्क, ठीक है। यहां तक ही हमें क्या मिल चाहिए, एनर्जी का जरूरत यहाँ पर हो जाता है। एंड दैट थिंग इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विथ एंजाइम। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विथ एंजाइम। मतलब यहाँ पर एंजाइम ऐसा काम करता है कि उसके वजह से एनर्जी की जरूरत यहाँ पर क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, ओके। सो गाइज इट इज अ लुक लाइक अ बेरिंग, ओके, बेरिंग ऑफ व्हील। जो व्हील का बेरिंग रहता है ना, इफ यू ऐड द ऑयल इन दैट बेरिंग, सो फ्रिक्शन गोइंग टू बी लेस एंड दैट्स व्हाई स्पीड जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा इन लो एनर्जी, ठीक है। बट बेरिंग के अंदर अब हम ऑयल ही नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो है फ्रिक्शन ज्यादा होगा एंड जो व्हील है ना वो जाम होगा, ओके। सो एक्सटर्नली सप्लाई एनर्जी ऑफ स्टार्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ब्रिंग अबाउट फोर्सफुल रिएक्शन। ये तो चीजें पता ही है, कॉमन थिंग्स है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। जब हम एंजाइम को ऐड करेंगे तब रिएक्शन में हमें जो है एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी, और एंजाइम को नहीं ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वहां पर यूटिलाइज करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा धीरे से समझते हैं, ठीक है। सो देयर हैव टू हाइपोथेसिस टू डिटरमाइन नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब दो हाइपोथेसिस हमारे पास में है जो क्या डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जो हमारे एंजाइम के एक्शन को डिटरमाइन करेंगे। कौन से दो हाइपोथेसिस है, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। चलिए, सबसे पहले समझते हैं लॉक एंड की को, ठीक है। लॉक एंड की में क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है
ठीक है, लॉक एंड की में क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम इज यूजफुल फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, दैट मीन्स यहां पर मैं लिखता हूं स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ओके, हो गया क्लियर? मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही यहां पर लगेगा। इट लुक लाइक अ लॉक एंड की। लॉक एंड की का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक लॉक है, लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक चाबी ही एंटर कर सकती है, लाइक दैट, और लॉक ओपन बाय दी स्पेसिफिक की। ठीक है, लॉक क्या करता है, एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फॉर एग्जांपल यू कैन सी द एंजाइम हियर, ओके, एंड यू कैन सी द सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट हैव a specific type of shape, okay, and that specific shape is we can say fixed in the enzyme। ठीक है, ये specific type जो shape है वो एंजाइम के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, एंड इट डेवलप इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द सिंपल थिंग इन द लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल में यही सिंपल थिंग जो है हमारे हमें बताया गया है। दिस इज एक्टिव साइड, ये रहेगा एक्टिव साइड इसको, एंड इट गिवन बाय इमिल फिशर। ठीक है, ये किसने दिया हमें, इमिल फिशर। ठीक है, ये किसने दिया हमें, इमिल फिशर इन 19 सॉरी 1894। ठीक है, 1894। चलिए, हो गया क्लियर? ठीक है, कैसा मॉडल है ये, सिंपल मॉडल है। सिंपल मॉडल में क्या बताया, स्पेसिफिक एंजाइम इज यूजफुल फॉर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ओके, लाइक अ लॉक एंड की, जैसे स्पेसिफिक की ओपन दी स्पेसिफिक लॉक। ठीक है, इस तरीके का ये मॉडल है, दैट इज नोन एज लॉक एंड की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सो लॉक एंड की मॉडल नॉट फुलफिल द एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम का एक्टिविटी जो रहता है ना, एंजाइमेटिक एक्शन जो रहता है ना, उसको फुलफिल जो है हमारा लॉक एंड की मॉडल नहीं कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो अब एक और मॉडल दिया गया, दैट इज नोन एज द इंड्यूस fit model, okay, and that induced fit model given by one scientist, and the name of scientist is it given by कोशलैंड। ठीक है, ये किसने दिया हमें, कोशलैंड इन 1959। ठीक है, 1959 में ये मॉडल दिया गया। अब कोशलैंड हमें ये कहता है, क्या कहता है, देयर हैव टू एक्टिव साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, दो एक्टिव साइट रहता है, कहां पर, एंजाइम के ऊपर, टू एक्टिव साइट। ठीक है, और वो दो एक्टिव साइट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वन साइड इज नोन एज दी, एक साइड को हम कहेंगे बटर सिंह ग्रुप। ठीक है, बटर सिंह ग्रुप, ओके, एंड नेक्स्ट साइड इज नोन एज दी कैटालाइटिक ग्रुप। ओके गाइस, अब क्या होता है, ड्यूरिंग substrate come in contact with the enzyme, at that time Butterfield group is able to join a substrate। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम, ये एक एंजाइम मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, एंड दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये रहेगा सबस्ट्रेट, यहाँ पर मैं लिखूंगा सबस्ट्रेट, ये मैं यस नाम देता हूँ। ठीक है, एंड दिस पार्ट, दिस पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसकी बटर सिंह ग्रुप, ये क्या रहेगा, बटर सिंह ग्रुप रहेगा। ओके, एंड हियर यू कैन सी द कैटालिटिक ग्रुप। ठीक है, एंड दिस थिंग इज द कैटालिटिक ग्रुप। ओके, कैटालिटिक ग्रुप। ओके, अब क्या होता है, when this substrate come, okay, and it join to the butter sink। ठीक है, मतलब ये बटर सिंक साइड जो रहेगा ना, इसे हम एक्टिव साइड कहेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ड्यूरिंग when substrate come in contact with butter sink group,
एक्टिव साइट अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, जब ये ज्वाइन होता है, सो हियर आई एम राइटिंग एक्टिव साइट go to conformational change, okay, due to substrate। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। एंड कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, सपोर्ट टू रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब देखिए इंड्यूस फिट मॉडल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। सो in case of lock and key model, we just discuss about one substrate come and directly join to the active side like a specific key use for the specific lock। मतलब एक specific lock के लिए specific key लगेगा, बस हो गया काम खत्म। इसमें ये सारा जो प्रोसेस है रिएक्शन वाला ये नहीं दिया गया था। बट इन केस ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल वी डिस्कस अ टू साइड, one is a Butterworth group, next is a catalytic group। Butterworth group is a act for a substrate as a active site। ठीक है, ये एक्टिव साइट जैसा काम करेगा यहाँ पर, एंड सबस्ट्रेट गेट जॉइन टू दी Butterworth एरिया। और जैसे सबस्ट्रेट जॉइन हो जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज हैपन इन द एंजाइम। ठीक है, सो कन्फर्मेशनल चेंज को ध्यान में रखिए यहाँ पर। सो कन्फर्मेशनल चेंज हैपन इन द एंजाइम। एंजाइम के अंदर क्या आ जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज। देन व्हाट इज मीन बाय कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, अगर लॉक एंड की मॉडल की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लॉक। ओके, सो दिस स्पेसिफिक की इज रिस्पांसिबल टू ओपन दिस लॉक। ठीक है, मतलब ये लॉक को ओपन के लिए स्पेसिफिक की ही जरूरत है। देयर हैव नो एनी कन्फर्मेशनल चेंज हैपन, यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हुआ है। ओके, बट प्रैक्टिकली इट नॉट वी कैन से प्रूफ। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती नहीं है ऐसा, इट इज अ नॉट नेसेसरी सबस्ट्रेट इज अ स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, मतलब ज्यादातर केस में हम अगर देखते तो सबस्ट्रेट 100% स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने की बात ये कि 100% स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की जरूरत होगी, बट 100% स्पेसिफिक होगा ही ऐसा नहीं है। सो एंजाइम वांट टू सम कन्फर्मेशनल चेंज, एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होने की जरूरत होती है। देन व्हाट इज मीन बाय कन्फर्मेशनल चेंज गाइस, सो दिस इज द we can say enzyme, ये जो है enzyme है। okay, and this is the substrate। when substrate come to contact with the enzyme active site, then this is the we can say shape of enzyme first of all। ठीक है, फिर ऐसे जैसे यहाँ पर ये एंट्री करता है सबस्ट्रेट, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द कन्फर्मेशनल चेंज, ये इसको पकड़ लेता है, दैट थिंग इज नोन एज द कन्फर्मेशनल चेंज। इसको ही कहते हैं हम कन्फर्मेशनल चेंज। एंड दैट कन्फर्मेशनल चेंज हैपन ड्यू टू बटरवर्थ ग्रुप। ठीक है, ये बटरवर्थ ग्रुप के वजह से हो रहा है। एंड इसके लिए कौन सपोर्ट करेगा रिएक्शन के लिए, अगेन कैटालिटिक ग्रुप। सो कैटालिटिक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट दी रिएक्शन। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, किसके सिस्टम को, हमारे जो सबस्ट्रेट रहेगा उसको कैच करने के लिए। हो गया क्लियर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंड्यूस फिट मॉडल, और इसके वजह से हम इसे कहते हैं इंड्यूस फिट। मतलब समथिंग फिट इनसाइड द एंजाइम, मतलब एंजाइम के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, फिट हो गया प्रॉपरली। एंड दिस थिंग इज 100% पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, और यही 100% पॉसिबल और प्रैक्टिकल मेथड जो है वो बनती है आगे चल के। समझ में आ गया इंड्यूस फिट, तो इतना सा सिंपल सा चीज है। लॉक एंड की ही जनरली हमें पढ़ाया जाता है, बट इंड्यूस फिट आल्सो इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, इफ इट क्लियर क्लिक ऑन यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट पार्ट जो है ना, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये भी सिंपल सा चीज है, मैं बताता हूँ। हमें ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वी वांट ऑप्टिमल कंडीशन। ये बात एक क्लियर रखो दिमाग के अंदर। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब होता है
we don't want low condition और extremely high condition, मतलब हमें low condition भी नहीं चाहिए, high भी condition नहीं चाहिए. There have specific capability of enzyme. ठीक है, अगर हमें high heat देते हैं तो generally enzyme get denature. ठीक है, enzyme क्या है, finally it have a protein, वो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा. सो टेम्परेचर क्या चाहिए हमें, ऑप्टिमम चाहिए. ठीक है, वाटर जो है वो ऑप्टिमम चाहिए. पीएच आल्सो वांट ऑप्टिमम, मतलब पीएच एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल कंडीशन में चाहिए हम. सबस्ट्रेट जो है, सो सबस्ट्रेट के केस में इफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेट डिक्रीजेस. ठीक है, जब सबस्ट्रेट इंक्रीज होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है. क्यों होती है, बिकॉज देयर हैव नो फ्री मॉलिक्यूल, देयर हैव नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू वी कैन से टू रिसीव सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट को रिसीव करने के लिए हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता. ये आप लोग देख सकते हो, ये पीएच वाला चार्ट है, ये टेम्परेचर वाला चार्ट है. ठीक है, हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा जाएगा, जरूर जाएगा. ठीक है, नो इश्यू, बट कुछ टाइम के बाद ये ऐसा नीचे आ जाता है. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में भी सबस्ट्रेट हमें डालना चाहिए फॉर स्पेसिफिक एंजाइम. If we want to increase the substrate, then we want to increase the enzyme also. मतलब अगर हमें सबस्ट्रेट बढ़ाना है, एंजाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट, if you want if we increases enzyme, rate of reaction क्या होगा, इजीली इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अगर सिर्फ एंजाइम ही बढ़ाते, सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ाते तो. ठीक है, नेक्स्ट इज इनहिबिटर. इनहिबिटर डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इफ इनहिबिटर इंक्रीजेस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेट डिक्रीजेस या लॉस हो जाएगा पूरा. End product, there have one inhibition and that is known as a feedback inhibition. So feedback inhibition also known as the end product inhibition. इसे हम end product inhibition भी कहते हैं. अब end product inhibition क्या करता है, you already study about the we can say hormonal activity in human. ठीक है, either it in female or male, ये स्टडी किया. जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो सम मॉलिक्यूल वी कैन से सेंड सिग्नल टू ब्रेन. ठीक है, जो हाइपोथैलेमस रहेगा उसको सिग्नल वो सेंड करेगा एंड इट ब्लॉक द एक्टिविटी और वी कैन से चेन ऑफ रिएक्शन व्हिच डेवलप प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन. ठीक है, या टेस्टोस्टेरॉन के भी केस में वो होता है, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. दैट इज नोन एज द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या देन और इट आल्सो नोन एज द फीडबैक इनहिबिशन. उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं. मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है और एक स्पेसिफिक अमाउंट में बढ़ गया है, ठीक है, और हमारे बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इट डोंट वांट एट दैट टाइम दैट एंड मॉलिक्यूल, जो एंड मॉलिक्यूल रहेगा, जो एंड प्रोडक्ट रहेगा, इट सेंड द सिग्नल ओके टू सोर्स. ठीक है, सोर्स को सिग्नल भेजेगा और वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा. नेक्स्ट इज द एक्टिवेटर. एक्टिवेटर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. नेक्स्ट इज द रेडिएशन. रेडिएशन के केस में अगर रेडिएशन ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, वी ऑलरेडी नो एंजाइम मेड फ्रॉम द प्रोटीन, प्रोटीन गेट डीनेचर. ठीक है, सो प्रोटीन होता है रेडिएशन की वजह से डीनेचर. सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, सो बाकी का थोड़ा सा बचा है, वो जो है वो कल हम कंप्लीट करेंगे कॉम्पिटिटिव वाला. एंड वी स्टार्ट द सेल साइकिल फ्रॉम द टुमारो. ठीक है, so I am launching the NPS. Okay, and if you have doubt about enzyme then you can ask me. ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो.